Hello friends, welcome to our YouTube channel JSM Study Centers. On this YouTube channels, we get all the topics related to NCERT mathematics. In easy steps, we can teach all the topics about to mathematics. Now, we want to talk about inverse trigonometry functions that's come under the mathematics in CBSE mathematics syllabus. Now we start inverse trigonometry functions. First we tell that sine inverse x is equal to 1 cosec inverse 1 upon x. That is a formula. Sine inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x. In any questions, if sine inverse x will be present and I want to convert in a cosec inverse, then we can write sine inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x. That is the formula. Now we prove how this is possible. Let sine inverse x is equal to a. Then this sine inverse goes to right side. X is equal to sine a. X is equal to sine a. We know that if 1 upon x is equal to 1 upon sine a. 1 upon x is equal to 1 upon sine a. Here is no problem. 1 upon x, and all of we know that 1 upon sine x is equal to cosec sine a cosec a. Sorry, here is that x. ठीक, no problem. Cosec a. Now this cosec goes to left side. So what happened? Cosec inverse 1 upon x. Cosec inverse 1 upon x is equal to a. Now we put the value of a from equation first. Then cosec inverse 1 upon x is equal to, what is the value of a? Sine inverse x. That is the formula, hence proved. And on this according we can prove second formula, cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x. We can prove easily by these methods. And third formula is tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x. All this formula, that is the first formula, sine inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x. Cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x. Tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x. Now we start another formula. That is a formula number 1, formula number 2, formula number 3, that's come in inverse trigonometry functions. We prove that this is an important formula. By this formula we solve any questions. Now, what is this? That is sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Sine inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. In any exam कभी कभी क्या होता है कि पेपर में ये पूछ दिया जाता है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. इसको आपको प्रूफ करना होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए. हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं. इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए. तो ये साइन जो होता है, साइन इनवर्स गोस टू राइट साइड, देन इट बिकम्स अ साइन. x is equal to what happened, x is equal to sin a. This sine inverse goes to right side
and becomes sine. And we know that in a trigonometry we know that what x, we know that cos pi by 2 minus a, इस साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए को ये लिखा जा सकता है ना, cos pi by 2 minus a मीन्स what, cos pi by 2, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो cos pi by 2 माइनस a को हम लोग क्या लिख दिए हैं, साइन a. नो प्रॉब्लम. दिस cos comes left side, then what happen, that is cos inverse x is equal to what, pi by 2 minus a. Then cos inverse x I know, pi by 2 I know very well, but what is the value of a from equation 1, that is equation 2. Now we write here, put the value of a, put the value of a from equation 1, माने इक्वेशन 1 से a की वैल्यू 2 में पुट करना है. पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 मीन्स ये जो a की वैल्यू है इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. आओ हम लोग अब इसको करते हैं, कैसे होगा ये, फिर ये हो गया आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू what is this, this is a pi by 2. Then we put the value of a from equation first to equation second. In equation 1 we can see that the value of a is sin inverse x. a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, sin inverse x. अब हम लोग सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है sin inverse x ओके प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2 अकेले है, इस पाई बाई 2 को अकेले कर दूं, ये साइन इस साइड आएगा, दिस साइन इनवर्स x गोज टू लेफ्ट साइड. इधर क्या है, माइनस है, तो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दैट बिकम्स cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपको करना था. मीन्स अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में जब भी आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आएगा तो उसकी वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, पाई बाई 2 पुट करनी है. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, साइन इनवर्स x को क्या लिखा था, कॉसिक इनवर्स 1/x लिखा था. इसके हिसाब से बाई फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फॉलो करके ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाला जा सकता है, और ये भी एक फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2. सेम इस प्रोसीजर को फॉलो करके एक फार्मूला ये भी निकाला जा सकता है, सेक इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसिक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. और एक क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi by 2. That is the formula number 1, that is the formula number 2, that is the formula number 3, that is formula number 4, that is formula number 5 and that is also formula number 6. हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x मीन्स 1 हो जाता है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिक इनवर्स 1/x. ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसिक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. हमने उसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी देखा था. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो है कि क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a. दैट इज द क्वेश्चन. tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a. तो हमें क्या फाइंड करना है, cos a की वैल्यू को फाइंड करना है. tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a. देन वी फाइंड what is the value of a cos a. No problem. tan inverse 3/4 a is equal to a. tan inverse goes to right side,
then it becomes tan A. What? Tan A. Tan inverse goes to right side with A, it becomes tan A. Then what is the value of tan A? Tan A means 3/4. In previous year we all of you study about what is the value of a sin A, what is the value of a cos A, what is the value of a tan A. If we don't know, then no problem. sin A की वैल्यू निकालने के लिए होता है, इसको याद किया जाता है, हिंदी में बोला जाता है लाल बटे कक्का. व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज द लंब. दैट इज द लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए साइन ए. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए साइन ए. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस ए. दैट इज द मतलब मीन्स ये वाली बात कर रहा हूं मैं. दैट इज द वैल्यू ऑफ अ tan A. लाल बट्टे कक्का, लंब बटे कर्ण इज द वैल्यू ऑफ अ sin A. आधार बटे कर्ण इज द वैल्यू ऑफ अ cos A. लंब बटे आधार इज द वैल्यू ऑफ अ tan A. what is this? Tan A is equal to 3/4. It means that 3 is present at the place of a lumb, 4 is the present at the place of a आधार. देखते हैं हम लोग फिर इसको. ये आपका ये हुआ ठीक. लंब क्या है? ये 3, आधार 4 मीन्स यहाँ पे. और हम लोग एक चीज और जानते हैं, कर्ण का इसको लेट मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो, एक 3 हाइपोटेनस. अब हम लोग एक जानते हैं, वो थ्योरम जानते हैं, उसमें होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. कर्ण कैसे फाइंड आउट करता है? इसका स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर? AC स्क्वायर का मतलब क्या होता है? AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक, नो प्रॉब्लम. AB स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस BC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मीन्स 16. व्हाट इज दिस? 25. AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 25. देन वी फाइंड AC, क्योंकि हमको क्या चाहिए? AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए. तो AC का मतलब क्या होता है? इसका रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 5. दैट इज द 5. हियर वी फाइंड the value of a AC with the help of a tan A by using this formula. Here we find the value of a AC with the help of a tan A by using this formula. लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार. That is useful for tan A, that is useful for cos A, that is useful for sin A. ठीक, अब हम यहाँ आ जाते हैं. What is the value of tan A? tan A की वैल्यू इतनी होगी. और cos A क्या होता है? यहीं से देख लो ना. cos A होता क्या है? आधार बटे कर्ण. आधार क्या है? 4, कर्ण क्या है? 5. cos A की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5. यही पूछा था. पूछा क्या था? cos A की वैल्यू क्या निकालनी है? हमको निकालनी थी. तो cos A यहाँ से पढ़ लेते हैं ना, क्या होता है? आधार बटे कर्ण. आधार हमको नोन है, कर्ण हम फाइंड कर लेते हैं 5. What is the value of a cos A? The value of a cos A will be 4/5. Now we can take sin A. मीन्स sin A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण. मीन्स sin A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण. लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस. cos A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर. tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार मीन्स परपेंडिकुलर बटा बेस. साइन ए की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस. के स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस. हाइपोटेनस मीन्स होता है कर्ण. इसको एच भी लिख सकते हो, के बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे के था इसलिए मैंने वहाँ पे के बोला है. उसका मतलब कोई नहीं है. साइन ए मीन्स क्या होता है? साइन ए माने क्या होता है? लंब बटा कर्ण. हिंदी में लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, tan A. No problem. That is the question first. Now we solve a second question. That is a second question solve करते हैं. Question आपका ये है कि sin inverse
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है। नो प्रॉब्लम। फर्स्टली वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, हमको राइट तक जाना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, ठीक। अब क्या करते हैं, दिस साइन इनवर्स गोज टू राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड विथ ए, इट बिकम्स साइन ए। इट बिकम्स साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई? साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ले लेते हैं। इसका भी स्क्वायर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर लेते हैं, ठीक। अब इसका स्क्वायर लिया तो ये क्या हो गया, साइन इन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि नहीं? ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये इनवर्स में नहीं पढ़ रहा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अब चूंकि हमको चाहिए क्या, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, साइन है, हमको साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का हियर इज ओनली वन मेथड फॉर कन्वर्टिंग साइन टू कॉस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए? कॉस स्क्वायर ए गोज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट बिकम्स साइन स्क्वायर ए इक्वल टू राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मीन्स यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉस, क्योंकि हमको प्रूव किस में करना है, कॉस में। साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो क्या चाहिए हमको, ये चाहिए, ये लाना है हमको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लाते कैसे हैं, ये कॉस स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर इस साइड लाते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस, हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो चूंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में प्रमोट करेंगे और कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में प्रमोट करते हैं। होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें क्या है, एक्स स्क्वायर 1 के साथ चाहिए, तो करते क्या हम लोग, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, ये चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, रूट ले लेते हैं, दोनों साइड का क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। जब दोनों साइड का हम रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर का रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक। दिस कॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, दिस कॉस गोज टू लेफ्ट साइड, इट बिकम्स कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और ये क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए। मीन्स इतना हो गया प्रूफ। अब देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो चूंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में प्रमोट करेंगे और कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में प्रमोट करते हैं। होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। चूंकि हमें क्या है, एक्स स्क्वायर 1 के साथ चाहिए, तो करते क्या हम लोग, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, ये चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, रूट ले लेते हैं, दोनों साइड का क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। जब दोनों साइड का हम रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर का रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक। दिस कॉस,
क्योंकि यहां पे cos इनवर्स है, दिस cos goes to लेफ्ट साइड, इट बिकम्स cos इनवर्स। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, और ये क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a, मीन्स इतना हो गया प्रूफ। अब देखते हैं a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 1 से हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से a की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x। एक क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो होता क्या है कि जितना फार्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि उस फार्मूले को क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 4/5 है। क्या क्वेश्चन आपका? cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपको प्रूव करना है, ठीक, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि जो भी फार्मूले हैं, होता है क्या कि ये फार्मूले का यूज कहां होगा, ये फार्मूले का ऐसा यूज होता है। मान लो ये 2 नंबर में आ गया, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4, नो प्रॉब्लम। फर्स्टली वी गो एनी साइड्स, इट्स नॉट अ मैटर, फर्स्टली वी गो लेफ्ट साइड। व्हाट इज लेफ्ट साइड? cos इनवर्स 4/5 हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू क्या कर लेते हैं, a, क्योंकि देखो हमेशा हर जगह मैंने a लेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करो। दिस cos इनवर्स गोज टू राइट साइड विथ a, इट बिकम्स cos a। व्हाट? cos a। दिस cos इनवर्स गोज टू राइट साइड विथ a, इट बिकम्स cos a। व्हाट? cos a। cos a की वैल्यू कितनी हो गई अब? 4/5। दिस cos इनवर्स गोज टू राइट साइड विथ a, इट बिकम्स cos a। cos a की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था cos a पता हो तो tan a कैसे निकालते हैं, बताया था लाल बट्टे कक्का, ये आपको बताया था, ये बताया था ना फॉर्मूला। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan, ये आपको मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट दैट इज द ट्रायंगल ABC, दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज द बेस, दैट इज द हाइपोटेनस, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ cos a? cos a मीन्स क्या होता है, बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस होता है। हिंदी में बोलें तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस को बोलते हैं। तो cos a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। व्हाट इज दिस, दिस इज 5। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है हमको ये वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि हमको क्या लाना है, tan, और tan किससे रिलेटेड होता है, लंब और आधार से रिलेटेड होता है। आधार तो मेरे पास है, लंब नहीं है, समस्या आ गई। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होती है। AC स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होती है। हमको निकालना किसका है, AB स्क्वायर, मतलब ये निकालना है। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आके लेस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये क्या है, AB स्क्वायर, AC मतलब 5 का स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है 5, तो स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस BC की वैल्यू क्या है 4, BC स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, 4 BC की वैल्यू है। तो BC स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इतना हो गया, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर मतलब 16, दैट इज 9। ये किसकी वैल्यू है, AB स्क्वायर की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए, नॉट अ AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू तुम्हारी 3 हो जाएगी। यहाँ पे फिलअप कर दो। हमको क्वेश्चन क्या देखना है, राइट हैंड साइड में ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, tan लग रहा है, तो हम लिख लेते हैं tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, तो tan गोज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट बिकम्स tan इनवर्स। तो ये राइट साइड में जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। इसको राइट साइड भेजते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। A में
ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यही आपको प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में आपको यही केवल करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, कोई एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सारे भी क्वेश्चन इसी मेथड्स होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या होगी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नए फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नया फार्मूला एक आपका है, 6 फार्मूले हम बता ही चुके हैं आपको। एक आपका फार्मूला ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है। हाँ, वो बात की बात है कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, पहले तो इसको रट लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये होता है। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो होता क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा। और एक फार्मूला और होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। समझ में कुछ नहीं है। अगर ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होगा x प्लस वाई, ऊपर कोई चेंज नहीं होता है, नीचे केवल होता है माइनस होता है। ठीक, अगर ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, नाउ वी प्रूफ इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि होता कैसे। ठीक, हमको ये प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, ये लेट, इसको क्या लेट करते हैं हम लोग, tan इनवर्स x बराबर a मान लो। इसको हम इसको क्या मानेंगे, tan इनवर्स x बराबर a। ये उधर चला जाएगा, tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी x। अब इसको हम लोग क्या मानते हैं, b मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे, tan इनवर्स y इक्वल टू b। ये tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan b इक्वल टू y। अब हम लोगों ने क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ये पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़े थे, tan a प्लस बी की वैल्यू पढ़े थे। tan a प्लस बी क्या होता क्या है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ये हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। tan a प्लस बी की वैल्यू क्या हमने पढ़ा था, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम लोग उसी फार्मूले पे चलते हैं। इधर हमने क्या लिखा, tan a प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे हम लोग, क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, ठीक, ये क्या हो गया tan a प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने दे। tan a की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, tan a की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे रख देते हैं x। tan b की वैल्यू क्या है y, क्या हो गया x प्लस वाई। ठीक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है x, tan b की वैल्यू क्या है y। ये बीच में इंटू है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। दिस tan गोज टू राइट साइड, इट बिकम्स tan इनवर्स। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा फिर, a प्लस बी बचेगा। दिस tan गोज टू राइट साइड, इट बिकम्स tan इनवर्स। ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये देखिए राइट साइड में जो आपको प्रूफ करना था वो यहाँ पे आ गया है, लेफ्ट साइड में नहीं आया अभी। लेफ्ट साइड में ये करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू आपको tan इनवर्स x है। अरे भैया, जब a की वैल्यू tan इनवर्स x है तो उसको यहाँ पे पुट कर दो ना, क्या है tan इनवर्स x। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू tan इनवर्स y है, यहाँ पे पुट कर दो, प्लस tan इनवर्स y। बस राइट साइड में जो है उसको चुपचाप उतार दो। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज ठीक। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। अगर अब देखो, अब सारे फार्मूले को सॉल्व नहीं कराया जा सकता। अगर कुछ नहीं होता है, अगर इसकी जगह पे ये माइनस आ गया, अगर प्लस की जगह पे क्या हो गया माइनस आ गया, तो यहाँ तो माइनस होगा, क्योंकि tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a प्लस
1 प्लस tan A tan B। अगर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सारा प्रोसीजर वही रहेगा। मीन्स अगर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दूसरा फार्मूला है, हम आपको लिख देते हैं दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा फार्मूला प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि वो सेम प्रोसीजर है, लिख देते हैं। लिखने का मतलब ये होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, ये आपको समझने में आसानी हो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने, जबकि ये यहाँ पे ही दिख रहा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x कोष्टक में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, दो फार्मूला पढ़ लिया। पिछली बार भी हम लोग क्या किए थे कि जितने फार्मूले पढ़ते जा रहे थे उतने क्वेश्चन लगाते जा रहे थे, ताकि हमको समझ में आए कि फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो इस पे हम एक सवाल लगाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, इसको कल हम जो होता है, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 12th का पूरा सिलेबस है उसमें स्टेप बाय स्टेप जो होता है सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इस 12th NCERT मैथ का जो भी सिलेबस है उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आसानी से करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बट ये क्वेश्चन आपको करना होगा उस फार्मूले के हिसाब से। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ। उसके बाद जिसको ये क्वेश्चन हो जाता है वो कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन को क्या कर दें, लिख के सेंड कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।